Great morning, students. Welcome to your EVS class. Students, today we will read chapter 8. The name of the chapter is Houses We Live In. घर जहाँ हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं. Houses. Why do we need a house? Yes, students. First mainly question that is arises, why do we need a house? We need a house to live in. It protects us from heat, cold, rain, thieves, etc. There are mainly two type of houses, kacha house and pakka house. Kacha house, which made of wood, straw, mud, are called kacha house. For example, hut. Hut is an example of kacha house because it made of straw, mud, wood, etc. And second is pakka house. Second is pakka house, a house which made of cement, iron, etc. We called it pakka house. So students, the example of pakka house is bungalow. So in this chapter we discuss about more different houses like temporary houses and special houses. Temporary houses which can be moved from one place to another is called temporary houses, like houseboat, caravan, tent, etc. And second is special houses. Special houses, those houses can be made where they are located, according to they are located, कि वे जहाँ हैं उस एरिए को देख के जो हाउसेस बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल हाउसेस. फॉर एग्जाम्पल, इग्लूज. इग्लूज इज अ हाउस ऑफ आइस बिकॉज क्योंकि वो एक ऐसे प्लेस में होता है जहाँ पर बर्फ ज़्यादा होती है. एंड सेकेंड इज स्टिल हाउस, अ हाउस विच बिल्ट above the ground because of rain. It made up above the ground because it helps us to protect from rain and water. Okay. Now student, in this chapter we learn about different types of houses. Let us learn this chapter. 8. Houses we live in. Houses we live in. This is the name of the chapter, घर जहाँ हम रहते हैं. In this chapter we discuss about a house. A house is a place where we live and feel safe. हाँ बच्चों, हाउस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ हम रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. A house is protect us from heat, cold, rain and bad weathers. It also protect us from wild animals and thieves. Now student, we already know that the houses are two types. There are two types of house. First is kacha house. First is kacha house and second is pakka house. Look at the pictures, kacha house and pakka house. In this picture you see that the kacha house is made up of bricks, straw, grass, etc. And pakka house made by cement, stone, etc. So student, this is the different type of house. And when we go another places, we saw a different type of houses like temporary house and special houses. Firstly, we discuss about temporary houses.
You see the picture. In this picture there are three type of houses. First is houseboat. First is houseboat. A houseboat is a floating house. Is a floating house. Tourists visit Kashmir to enjoy their stay in houseboats. कि जो टूरिस्ट इंजॉय करने के लिए कश्मीर में जाते हैं वो टूरिस्ट हाउस में रहते हैं, हाउस बोट में वो रहते हैं. नेक्स्ट है बेटा कैरावान. कैरावान इज अ व्हील हाउस. सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food and water. So they live in the houses on wheel. We called it caravan house. Next is tents. Some houses are made of canvas. They are called tents. They can be easily folded and carried along. So student, these are our temporary houses. Temporary houses can be moved from one place to another. Now let us read about some special houses. Special houses are made according to the place where they are located. Now we read. First is igloo. Some people live in houses made of snow. These houses are called igloos. Such houses are made in areas where it snows a lot. कि जहाँ ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ इस टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं. दिस इज़ द हाउस विच वी कॉल इग्लू. नेक्स्ट है बेटा स्टील्ट हाउस. Stilts houses are made in areas that are generally flooded due to rain. This type of houses save us from the heavy rainfall. We call it stilt house because a stilt house stands on a set of wooden posts. It is quite high above the ground. So student, houses is very important for us. It protects us from weather. It is hot or rainy and others. Protection from thieves and animals. Houses protect us from thieves and animals. So student, we should keep our home clean and make our home happy. Now student, let us read our chapter. The name of the chapter, houses we live in. Let's start students. We need a house to live in. We need a house. हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है. It protects us from heat, cold, rain and bad weathers. यह हमें हीट, गर्मी, सर्दी, बरसात और बैड वेदर से हमें बचाता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. यह हमें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों और चोरों से भी हमारी रक्षा करता है. वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस. जब हम अपने घर में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेफ फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को. वी ऑलरेडी नो अबाउट कच्चा एंड पक्का हाउसेस. यस स्टूडेंट, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चा हाउस, a house made of mud, straw, wood, leaves, etc. is called kacha house. This is the picture of a hut. It is a kacha house. And the pakka house, a house made of bricks, cement, stone, iron, etc. is called pakka house. For example, bungalow. This is a picture of kacha house and this is a picture of pakka house.
नाउ लेट अस लुक एट सम मोर हाउसेस। आओ अब हम कुछ और हाउसेस को देखते हैं। टेम्परेरी हाउसेस। यस स्टूडेंट, टेम्परेरी हाउसेस। सम हाउसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेस। यस स्टूडेंट, कुछ हाउस होते हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उन हाउस को बोलते हैं हम टेम्परेरी हाउसेस। फॉर एग्जाम्पल है हाउस बोट। लुक एट द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हाउस बोट। A houseboat is a floating house. Tourists visit Kashmir to enjoy their stay in houseboat. कि हाउसबोट है वो एक फ्लोटिंग हाउस होता है और टूरिस्ट होते हैं जो कश्मीर को वो इंजॉय करते हैं इसमें रहकर हाउसबोट में। व्हील कैरावन। Some people move from one place to another in search of food and water. Students, कुछ people होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में मूव करते हैं। They are known as nomads, means खाना बदोश। उनको हम नोमाज या खाना बदोश बोलते हैं। Such people live in houses on wheels कॉल्ड व्हील कैरावन। फिर जो पीपल ऐसे हाउसेस में रहते हैं जो व्हील पे होते हैं उनको बोलते हैं व्हील कैरावान्स। लुक एट द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ व्हील कैरावन। इट इज अ हाउस विच स्टैंड ऑन द व्हील्स। इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट इज टेंट। सम हाउसेस आर मेड ऑफ कैनवस मीन्स क्लॉथ। कि कुछ हाउसेस हैं जो कन्वस यानी क्लॉथ से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड टेंट्स। वी कॉल टेंट्स। दे कैन बी ईजीली फोल्डेड एंड कैरिड अलोन। इनको हम ईजी से फोल्ड कर सकते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना ईजी होता है। दे आर वेरी इजी टू पुट अप। इनको उठाना, डालना, लगाना ईजी होता है। सच टेंट्स आर यूज्ड बाय माउंटेनर्स एंड कैंपर्स। इस तरह के जो घर होते हैं, ये टेंट होते हैं, ये माउंटेनर्स और कैंपर्स द्वारा यूज किए जाते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टेंट। यस, इट इज़ वेरी इजी टू पुट अप। इसको लगाना बिल्कुल ईजी होता है। नेक्स्ट इज स्पेशल हाउसेज। सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड। वेयर दे आर लोकेटेड कि कुछ हाउसेस होते हैं जो अपने प्लेस यानी जहाँ वो स्थित हैं, लोकेटेड हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। हम उनको बोलते हैं स्पेशल हाउसेस। द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल हाउसेस इज इग्लूज। दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इग्लू। दिस इज अ हाउस ऑफ आइस। सम पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ स्नो। कि कुछ लोग ऐसे हाउसेस में रहते हैं जो स्नो से बने होते हैं। दीज हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। इन हाउसेस को हम बोलते हैं इग्लूज। सच हाउसेस आर मेड इन एरियाज वेयर इट स्नोज अ लॉट। ये हाउसेस वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ स्नो, बर्फ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, दिस इज अ स्टिल्ट हाउस। दिस इज अ स्टिल्ट हाउस। दिस हाउस इज अबाउट द ग्राउंड। Still houses are made in areas that are generally flooded due to rain. Still house एक ऐसा एरिया होता है जो जनरली जहाँ बाढ़ है वो बारिश के कारण आती रहती है। A stilt house stands on a set of wooden post. ये वुडन पोस्ट है, इन पे ये स्टैंड करता है। It is quite high above the ground. ये थोड़ा सा ऊपर होता है, ग्राउंड से थोड़े ऊपर बनाए जाते हैं ताकि ये हमारी रेंज से, फ्लडेड से, बाढ़ से हमारी रक्षा कर सकें। नेक्स्ट इज हाउसेज विद स्लैंटिंग रूफ्स। कुछ हाउस होते हैं बेटा जिनकी स्लैंटिंग रूफ होती है, लाइक दैट हाउसेज विद स्लैंटिंग रूफ। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्लैंटिंग रूफ हाउसेज इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अ लॉट।
कि ऐसे प्लेस जहाँ पर बारिश और बर्फ़ ज़्यादा होती है, हाउसेज हैव स्लैंटिंग रूफ्स, उन हाउसेज की जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग होती है, टू अलाउ द रेन और स्नोफॉल टू फॉल डाउन ईजिली, ताकि जो बर्फ़ इस पे गिरे वो नीचे आसानी से आ जाए। वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन, कि हमें अपने हाउस को अच्छे से रखना चाहिए, उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए और उसको सेव रखना चाहिए। So students, in this chapter we learn about different type of houses. Yes, a house is very important for us because it protects us from heat, cold, rain, thieves, etc. So let us do back exercise of this chapter. First is tick the correct answer. Number 1. A house made of bricks, cement and steel इज कॉल्ड आ। एक हाउस जो ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से बना है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंट। पक्का हाउस हट। ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से इट इज़ अ पक्का हाउस। नोमाड्स लिव इन, नोमाड्स कहाँ रहते हैं? फ्लैट्स में, इग्लूज में या व्हील कैरावान? यस, व्हील कैरावान में, बिकॉज इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। नेक्स्ट इज सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप, ईच ग्रुप में आपको जो अलग है उस पर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट इज हीट, पेपर, कोल्ड, रेन। सो बेटा हीट, कोल्ड, रेन ये वेदर के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो पेपर इज ओड वन, सो वी सर्कल हेयर। टेंट, कैरावान, टेबल, हाउसेस। हाउस बोट, टेंट, कैरावान और हाउस बोट is an example of different type of houses, but table is not a house, so we circle here. Next, in a B part, a house made of canvas is called a, जो हाउस कैनवास से बना होता है, क्लॉथ से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंट, हाउस बोट, बंगलो। वी कॉल्ड इट टेंट। a house protect us from, एक हाउस है वो हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड, बोथ। यस, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस हीट एंड कोल्ड, सो वी टिक बोथ। इन अ नेक्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको फिल करनी है। फर्स्ट इज अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील इज अ क्लीन टेंट्स, पक्का हाउस, हाउस बोट, इट इज अ पक्का हाउस, सो वी राइट हेयर पक्का हाउस। इन द नेक्स्ट पार्ट, ए डैश इज अ फ्लोटिंग हाउस, डैश इज अ फ्लोटिंग हाउस। यस, अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। माउंटेनर्स एंड कैंपर्स पुट ऑन डैश, माउंटेनर्स और कैंपर्स क्या लगाते हैं? टेंट्स। वी शुड कीप आवर हाउस, हमें अपने हाउस को कैसे रखना चाहिए? क्लीन। वी राइट हेयर क्लीन। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द हाउसेस शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर, इन पिक्चर्स में आपको डिफरेंट टाइप के हाउसेस दिए हैं, आपको इनके नेम लिखने हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इग्लू हाउस, इग्लू। नेक्स्ट, इट इज मेड ऑफ क्लॉथ, दैट्स वाई इट इज अ टेंट हाउस, दिस इज अ टेंट। नेक्स्ट इज इट makes mud, straw, wood, so we called it hut. In E part, tick the things we must do to keep our house clean, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उन पे टिक करना जो हमारे हाउस को क्लीन करने में हेल्प करती हैं। कीप थिंग्स एट देयर प्लेसेस, कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको वहीं रखना है, उसी के प्लेस पे रखना है। यस, इट हेल्प अस। लीव आवर टॉयज ऑन द फ्लोर, अपने टॉयज को फ्लोर पे छोड़ देना चाहिए? नो। अरेंज आवर बुक्स नीटली इन द बुक शेल्फ, अपनी बुक्स हैं उनको अच्छे से नीटली बुक शेल्फ में अरेंज करना चाहिए।
Yes. Bring muddy shoes into the house. No. आपको गंदे शूज अपने हाउस में लेके आने चाहिए? No. So students, this is your back exercise. You have to feel that. So student, I hope you enjoy this chapter. Yes. Now student, you are able to describe the different type of houses like temporary, spatial, kacha house, pakka houses, what is a houseboat, what is a caravan, like that. So student, you have to read this chapter 2 times and also revise the back exercise. Thank you. Have a nice day.